Guys, this is the most expensive coffee in the world. Really, I don't know यार इतना लेट हो गया. Just hoping for the best and finger crossed. I'm missing an international flight. Telling कि this is the most expensive taxi in my life which I have took. यहाँ भी वही इंडिगो वाला सीन है जो वियत जेट और आपका वियतनाम एयरलाइंस आर जस्ट लाइक इंडिगो एंड स्पाइस जेट है. सबसे खड़ी है फ्लाइट बस और वही है 25 मिनट से सारे लोग. Shortest flight ever of my life. I didn't think that I'll be deboarding the plane. Guys, we are being taken to a next area. Hello, Sonkit. Yeah, Nice meeting you. yeah, nice to meet you, Satyam. So guys, hello and good morning. It's the last day in Ho Chi Minh City. We are checking out from this crazy amazing hostel. By the way, we are going to explore a market nearby. It's called the Central Market that we have shown already in the video yesterday. But let's go and purchase something. Just 11:53, it's around 12 and we have a flight to catch at 4. So guys, this market is called the Central Market and it's just across the street. And this is the street where our hostel was and the hideout hostel. Now let's go to the market and explore something. Let's check it out. What do we get out of here? So guys, actually the market was not upstairs. It's underground and this is the market entry. दोस्तों कपड़ा तो बहुत ही अच्छा है, मतलब अनडाउटेडली अच्छा है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है. आई मीन इफ यू कैन बार्गेन इट विल बी गुड, बट द क्लोथ्स आर रियली नाइस. दोस्तों तो देखो, सिर्फ वही नहीं, यू हैव आल्सो टॉयज, बाबूज. Crazy girl. So guys, we're taking this natural Kopi Luwak coffee. These are from farming. But this is from the animal directly. Okay, so guys, this is the most expensive coffee in the world, and basically it's a poop from this animal, and it's a very hard process to collect that. And yeah, so I'm purchasing this coffee. It's from the beans. Ma'am is crushing it. I mean, from the machine, and we are getting it in a powder format. There are multiple ways to drink this. Either you can drink it as a black coffee, you can drink it with milk, and also ma'am told that you can drink it with cinnamon if you like. And also with cocoa. So दोस्तों हमने परचेज कर लिया अभी कुछ सामान. Then also we purchased a coffee out here and it was really amazing shopping experience right now. So guys, last day in Ho Chi Minh and it doesn't end without 7-Eleven. We'll grab it fastly and take it to the airport. So दोस्तों क्या बताऊँ, लेट पे लेट हुआ जा रहा है. फ्लाइट का अभी बज रहे हैं 1:30 एंड फ्लाइट का टाइम है अपना 4 बजे इट लीव्स. एंड अभी चेक इन कराना है, इमिग्रेशन कराना है. रियली आई डोंट नो यार इतना लेट हो गया. आई थॉट कि नहीं होगा लेट, बट शिट मैन. एंड ग्रैब हो भी नहीं रहा था. इट गॉट कैंसिल ट्वाइस और थ्राइस और एक का पिकअप बहुत दूर. तो अब मैंने लोकल मतलब रोड पे जाके वहाँ पे एक टैक्सी ले लिया है. मैंने पूछा कितना, बट ही टोल्ड बाय मीटर. तो लेट्स सी कि क्या होता है. मेरे पास ज़्यादा कैश है भी नहीं एंड थैंक गॉड मैंने पूरा कैश स्पेंड नहीं किया था. आई एम रियली लकी कि मतलब बच गया था कैश. एंड लेट्स सी यार, ये भी एक पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है एंड इट ऑलमोस्ट टेक 40 मिनट्स टू रीच एयरपोर्ट. जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट एंड फिंगर क्रॉस्ड क्योंकि वियतनाम का मैंने सुना है इट्स सो हार्ड यार. क्या बोलूँ मैं, लेट्स सी क्या होता है. I was having a candid conversation with the driver, and he's very good. And they were just talking to me and telling me that I won't miss my flight. That's very good of him. But I am shit scared, and I don't know if I will catch the flight or not. But let's see. It's part of our experience and a part of our travel that you do first time, guys. I'm missing an international flight, and this is the country where I want to visit. Please, God. गाइस आपको पता है क्या हुआ अभी, वो सब छोड़ो. Lao, same. लाओ या. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने ग्रैब कैंसिल करी थी. अब मैंने जो सामने टैक्सी मिला मैंने वो लिया. टैक्सी का फेयर आपको पता है कितना है यहाँ से एयरपोर्ट जाने का. इट अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये फ्रॉम देयर टू देयर. दिस वाज अराउंड, मतलब मेरे को वही 400 पड़ता है. आई एम गेटिंग इट फॉर 4,000. व्हाट डिड आई डू? Telling कि this is the most expensive taxi in my life which I have took. So दोस्तों, बट थैंकफुली भैया के पास डॉलर्स है. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. लाइक इट वॉज माई मिस्टेक. आई वॉज गेटिंग लेट. आई शुड हैव, मतलब मैं पहले करना चाहिए था मुझे. एंड आई कैन नॉट ब्लेम हिम और एनी वन बिकॉज ग्रैब इज़ योर जॉब टू डू इट एंड आपको करना चाहिए था भाई.
बट द थिंग इज इट्स फाइन. अब इनके पास द बेस्ट पार्ट इज इनके पास खुद डॉलर्स है. आई हैव बिकॉज 100, तो मे बी इट विल बी अराउंड $30 यहाँ का प्राइस में. तो आई ही हैज़ लाइक 70, विल गिव मी चेंज, तो दैट विल बी फाइन. बस यार अब फ्लाइट ना छूटे भाई, क्योंकि अब इतना पैसा दे के फ्लाइट भी छूट गया ना, मेरे एल लग जाएंगे. राइट, New Delhi City. न्यू दिल्ली. या Say Ho Chi Minh. हाँ, सेम हो ची मैन. I don't know. Acha, you see in the movie, nice. This was one of the most expensive ride in my life history, but thankfully, sir exchanged the dollar with me, and I'm very happy for that. And thank you so much. Okay. So, guys, I have reached the airport by giving around 4,000 rupees, and this is insane, man. So, baggage का वजन हो गया है अपना 12 किलो, and 9 में लाया था, 12 हो गया है. After the check-in, I'll tell you, but thankfully the check-in happened. दोस्तों हमें बोर्डिंग पास तो मिल गया है. तो बेसिकली मुझे लगा था सेम फ्लाइट है जो कि फिनोम फेम भी जा रहा है एंड उसके बाद आपका वो वियंटीन जा रहा है, बट ऐसा नहीं है. वियंटीन में जो फ्लाइट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फिनोम फेम. भाई साहब इमिग्रेशन का लाइन देखो यार, इट्स नॉट अ जोक. सो दोस्तों टाइम बज रहे हैं कुछ 2:09 एंड हम इमिग्रेशन लाइन पे खड़े हैं. मे बी आप लाइन देख पा रहे हो, इट्स नो जोक. मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आधा घंटा तो लग ही जाने वाला है, ढाई, बट स्टिल वी आर गुड ऑन टाइम, थैंकफुली गॉड. तो अपना इमिग्रेशन तो हो गया है एंड टाइम हो रहा है कुछ 2:30. तो इट्स हो गया यार, टाइम ज़्यादा लगा नहीं, तो आई थिंक इट्स गुड. गाइस द टाइम इज़ 2:37 and we have completed all our formalities. Now we have to move towards the boarding gate, and basically our first flight leaves to Phnom Penh, that is in Cambodia. So basically Phnom Penh Vietnam Airlines is 8 check-in 8. दोस्तों तो 2:30 बजे ही सारा काम हो गया है. हम ग्लैड कि चलो जल्दी पहुंच गए, सब काम फॉर्मेलिटीज हो गया. थोड़ा बस दुख इस बात का भी है यार कि जो पैसे 300 रुपये लगने वाले थे, 350 या 400 रुपये, आई ऑलमोस्ट पेड 3,900 रुपीज़ फॉर अ कैब. 10 किलोमीटर भी नहीं होगा यार, आधा घंटा पौने घंटा का कैब था, आधे घंटे का था. बट हाँ, वी गॉट अ टोयोटा इनोवा, दैट हार्डली मैटर्स ब्रो. मतलब 4,000 रुपये यार, बहुत वो खल रहा है यार. अब ठीक है, एवरीथिंग कैनॉट गो वेल राइट, मतलब समथिंग और द अदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट यही लाइफ है एंड दिस इज़ हाउ यू लर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग कि मतलब यू शुड नॉट टेक अ रिस्क एट ऑल. बट cool, yeah. You can see the duty free area. It's spreads all around here, the cafes, and we have our gates 8 to the departure. गाइस अब टाइम हो रहे हैं 2:40. तो हम सोच रहे हैं कि यार अब मेरे पास कुछ डोंग बचा हुआ नहीं है, कुछ दैट इज़ समथिंग अराउंड, वो सोवेनियर के लिए मैंने डोंग रखा हुआ है. एंड तो बट दिस इज़ द वैट रिफंड एरिया, दैट टेक अ वैट रिफंड, आई गेस यू हैव टू बी कम हियर. बट गेट्स भाई किधर है? दोस्तों का एयरपोर्ट तो अच्छा है यार, मतलब यू सी ऑल द फ्लाइट्स देयर. दोस्तों यहाँ भी वही इंडिगो वाला सीन है, जो वियत जेट और आपका वियतनाम एयरलाइंस आर जस्ट लाइक इंडिगो एंड स्पाइस जेट एयरलाइंस. तो आप बेसिकली अगर आप ये वाला बोर्डिंग करते हो, जो मतलब वो एयरलाइंस को महंगा पड़ता है क्योंकि वो सारा पार्किंग फ़ी एंड एवरीथिंग. और ये क्या करते हैं कि बस से आपको वहाँ छोड़ते हैं एंड वहाँ से आप बोर्ड करते हो फ्लाइट. तो बेसिकली जो बस का पैसा होता है वो इनका बस होता है, दैट इज़ कंपैरेटिवली वेरी लेस एक्सपेंसिव. तो इसीलिए आपको वो जनरली लोग प्रेफर करते हैं. बट यही है सीन गाइस, जैसा इंडिया में अपना चलता है वहाँ यहाँ भी है, नथिंग मच डिफरेंट. तो ठीक है, कांट कंप्लेन अबाउट इट भाई. लेकिन एक और चीज़ है यार, अभी तक मुझे ना एकदम दुख हो रहा है फॉर दैट स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी इन कैब. भाई 8,000 की मेरी फ़्लाइट हुई थी भाई, नहीं 9,000 की फ़्लाइट हुई थी मेरे वियतनाम से लाओस जाने की, जिसमें मैं कंबोडिया भी उतर रहा हूँ. ठीक है, 4,000 रुपये में अपने हॉस्टल से, जस्ट हॉस्टल के बाहर, मतलब वहाँ से लेके मैं एयरपोर्ट आया हूँ. गाइज लर्निंग गाइज, ठीक है. दोस्तों ये है अपना गेट 8 एंड यहाँ पे बोर्डिंग के लिए मैं चार्जिंग पॉइंट ढूंढ रहा हूँ यार, कैन नॉट फाइंड अ चार्जिंग पॉइंट. दोस्तों मैं गेस अपनी ये फ्लाइट लगने वाली है और ये तो रे इस पे लग रही है आपका इसी गेट पे 8 नंबर पे. सही है भाई, हमें बस से नहीं जाना पड़ेगा. बोर्डिंग चालू हो गई है दोस्तों यहाँ पे एंड 3:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट करा है मैंने. लेट्स सी. ये है कुछ एयरपोर्ट इनका एंड एरो ब्रिज लगा हुआ है एंड बोर्डिंग है स्टार्टेड एट 3:30.
with the ritual of touching the plane. What the boarding looks like. दोस्तों बड़ा मशक्कत तो करे बाद ये विंडो सीट तो मिल गई है। हाँ बट एक और चीज़ है भाई, ये वाला जो फ्लाइट है हमें बस एग्जिट रो के पास मिला है, तो ये रिक्लाइन नहीं हो सकता है वो जो सीट है, बट ठीक है यार, 1 घंटे का जर्नी है, क्या ही करना रिक्लाइन करके। दोस्तों it's time to say goodbye to Vietnam and Ho Chi Minh City. I would definitely love to come to visit this place again. This time with more time, maybe when I complete all my travel series, and then I'll definitely try to come to Vietnam because this is really nice country. You should travel. और दोस्तों एक और चीज़ अच्छी हुई हमारे साथ कि मतलब एक तो विंडो सीट मिला है, उसमें से एक चीज़ था कि दिस इज वॉज अ नॉन रिक्लाइनिंग सीट बिकॉज जस्ट पीछे इमरजेंसी एग्जिट है, बट द मिडिल सीट इज एम्प्टी एंड द बोर्डिंग हैज बीन कंप्लीटेड, सो मे बी दैट विल बी अ रेस्ट, आई विल स्लाइड डाउन थोड़ा सा, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट कंट्री गाइज, द ट्रैवल इज गोइंग क्रेजी, a bit up and down a bit, but I won't say that कि एकदम smooth experience रहा है because some things I need to manage and some things needs to happen right away. I need to remember that, and when rest everything is good, and see you in the country number 3. Basically before going to country number 3, Laos, it's also landing in Phnom Penh, capital of Cambodia. So let's see if I land down, then what do you call that, and see you next time. दोस्तों ये क्या तरीका है भाई, मतलब हम लोग कब से बैठे हुए हैं, 4:05, फ्लाइट मतलब थोड़ा सा इस पे टैक्सी करने लगी थी, स्टिल सिटिंग अराउंड भाई, 25 मिनट का फ्लाइट है तो इनको पूरा अपना टाइमलाइन कंप्लीट करना है, नॉट अ गुड एक्सपीरियंस है मतलब भाई, कुछ तो बताओ क्या सीन है क्या नहीं है, तब से खड़ी है फ्लाइट बस, और वही है 25 मिनट से सारे लोग बोर्डिंग कर, नो आइडिया क्या चल रहा है। दोस्तों लगता है मेरी गाड़ी इन तक पहुंच गई है भाई, 25 मिनट का फ्लाइट का टाइम है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए ना रुका हुआ था, एंड अब जाके एयरबोर्न होने वाले हैं 4:30 भाई साहब, कुछ भी पॉसिबल है कुछ भी। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इट्स वाज अभी टाइम देखो अब क्या हुआ है, 4:46 राइट, तो वी हैव जस्ट टुक ऑफ, एंड अभी कैप्टन का मैसेज आया, आई मीन इस पे आया है कि प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग, गाइस 15 मिनट का फ्लाइट है भाई साहब, shortest flight ever of my life and the expensive cab ever in my life, दोनों ने आज ही मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। दोस्तों welcome to Cambodia, Phnom Penh. This is my country number 3 for this trip. 4-5 दिन में तीसरी country guys, crazy travel happening here, and you can see around nature right, एक aerial view। We thought कि हमें plane change नहीं करना है and we don't have to get off the plane, but we do have, guys, see Cambodia, and the capital city is Phnom Penh, and I guess that is the pagoda that we are talking about, जो नीचे आपको दिख रहा है, I guess बहुत ज़्यादा मतलब डेंसली पॉपुलेटेड तो नहीं लग रहा मुझे, इट्स जस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा स्कैटर्ड है सेटलमेंट, एंड सही है यार, बट The outside temperature is 35 degrees Celsius. Please remain seated with the seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. You are requested not to exit the aircraft or unless chartered by the cabin crew. Passenger continuing to Vientiane requested to bring along all your carry-on baggage in the back of the aircraft and proceed to the charter area to prepare for your next flight. When opening the overhead lockers, please take care of his suit. एयरपोर्ट तो अच्छा है उस दिन का, मतलब बड़ा है, ऊपर से लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा होगा, बट
अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे इसमें एरो ब्रिज हैं, मतलब दैट मीन्स बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स इधर आती है ऑन कम्बोडिया। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लुक्स न्यू, मतलब अभी रिसेंटली बना हुआ लग रहा है, तो आई गेस साफ सुथरा है एंड काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मेंटेन्ड है, तो इट्स नाइस। अगर मेरे पास कभी मतलब नेक्स्ट, ये एशिया कंट्री का मेरा राउंड 1 था, जो राउंड 2 में करूँगा, लाइक सिंगापुर बचा हुआ है, अभी और भी एशियन कंट्रीज बचे हुए हैं, तो जब उसको कवर करूंगा तो कंबोडिया डेफिनेटली मैं आऊँगा। Guys, welcome to Cambodia finally. I didn't think that I'll be deboarding the plane, and so I won't be counting it. But still, if we are on the airport and I have landed in the city, so maybe I can count. Maybe I can count this, and yeah, because we have landed in the airport. But our connecting flights will be in some few amounts of time right now, and you can see the airport this way. So guys, we have a transit to Vientiane, and I guess I'll be taking a transit. So guys, we are given with this transit card that helps us to, because we don't have the visa of Cambodia, but this will help us allow to board our next connecting flight. सो गाइज कभी भी जब आप एयरपोर्ट में आते हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो उसमें हमेशा एक एरिया होता है जो कि ट्रांजिट एरिया होता है। एंड ट्रांजिट एरिया आर जनरली कॉल एज नो मैंस लैंड। तो बेसिकली वो किसी भी कंट्री का बिलोंग नहीं करता है, एंड दैट्स द रीज़न वाई यू डोंट हैव टू टेक अ वीज़ा फॉर ट्रांजिट। बेसिकली सम कंट्रीज रिक्वायर अ वीज़ा for transit also, but at least for now Cambodia doesn't require it. And now we are traveling to Vientiane, and that is in Laos. So guys, we are being taken to a next area where we'll be boarding our next flight for Vientiane, Laos. So दोस्तों हमारा अभी फिर से एक सिक्योरिटी चेक हुआ था अभी नीचे, एंड नाउ वी आर इन द ट्रांसफर एरिया, लाइक यहाँ से गेट्स। Guys, you can see the airport which I was talking about. It's beautifully built. The architecture from the outside, which I was just telling about, and it's really nice. I'd love to come to Cambodia someday, as I told already in my part 2 of the series. But yeah, it's very nice because maybe it's recently built, so the architecture is the same or something like that. But yeah, it's good. And to come to Cambodia, yes, it's a motivation for me. Basically, it's a Angkor Wat temple here, and help me to cover that. And it's a very famous Hindu temple that most of the people visit there. Guys, we are now boarding for Vientiane. VN 9:20 is boarding time, and it's 5:38 now. This is the second flight for the day, and it's close to 5:39, 5:40, and we're just boarding. I guess the flight time would be again somewhere around 1 hour. Beautiful. I literally love the airport ambience. Pratishtha and parampara that we do. We touch the feet of the aeroplane, and not the feet, but we basically touch to have good luck, and which we do. Hello. Hi. दोस्तों हम घूम फिर के यार सेम ही प्लेन में बैठे हैं भाई। हाँ यार, यही वो खिड़की था। 44 का टाइमिंग। ये क्या है ये हमें समझ नहीं आया। मतलब आप जब ट्रांजिट करते हो तो आपको फिर से क्यों चेक इन कराना पड़ता है? बेसिकली सेट ऑन द सेम प्लेन, या फिर हम अगर कंट्री चेंज कर रहे हैं तो मे बी वो ट्रांजिट कराना ज़रूरी है, वेयर दे चेक इन, शायद वो इम्पोर्टेंट हो। So guys, it's 6, approximately 5:59, 6, and we have just started taxiing. Maybe we'll take off very soon, and the flight time would be around 1.5 hours from here. दोस्तों we are still taxiing. Taxiing में हमें फिर ये दिया जाता है गेटवे वेलकम टू लाओस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ पे आप अपने अराइवल और डिपार्चर का डिटेल्स भरते हैं। Guys, the flight is prepared to take off. तो कंबोडिया भी बहुत प्यारा सा जगह है यार। यहाँ पे नीचे आप वाटर बॉडीज देख रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है। और
Sky तो यार the sky is amazing. Evening sky है ना मेन बात है. दोस्तों इस फ्लाइट में हमें ये फूड लाइट मील भी सर्व किया जा रहा है एंड इसके साथ साथ नज़ारे देखेंगे. भाई साहब क्या क्रेजी है. टाइम वही कुछ 6:30 बज रहा है. So, ये देखो दोस्तों हमारे पास है कुछ फ्रूट्स. इसमें फिश या ट्यूना होगा एंड आप देख लो भाई कटलेरी सेट पूरा दे रखा है. इनफैक्ट टूथपिक तक दे रखा है. इस नज़ारे के साथ we are having some light snacks. So दोस्तों और क्या मांगे हम एयरलाइन से. भाई इन्होंने पहले पूरा खाना दिया, फ्रूट्स, उसके बाद ड्रिंक्स एंड उसके बाद भाई कॉफ़ी या टी दोनों में से आपके पास ऑप्शन है. एंड बाहर का एंड आप ऊपर स्क्रीन देख पा रहे होगे. और दोस्तों फ्लाइट में भी आप देखो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है. मतलब स्क्रीन्स दिए हुए हैं हर जगह. मतलब ऐसे ये नज़ारे ही कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है. बट भाई मज़ा आ गया यार वियतनाम एयरलाइंस में बैठ के. मतलब लव द एक्सपीरियंस एंड लव द हॉस्पिटैलिटी. Guys, it's around 7:21 p.m. and we are about to land in Vientiane, Laos. I'm glad I can make it to. Always wished for, and really I'm emotional for the same. Also, I met amazing people on the flight. Would you like to come on camera? His son, hello, and his Sonkar. Hello, Sonkar. Yeah. Nice meeting you. Yeah, nice So, to meet you, Sanjam. these guys are from Cambodia and they are working on sustainable farming and agriculture. So we had a great conversation with them, and it's really nice Yeah. people. And Next time you can come. hello, yes. Come. And also next time it's also one of my motivation to come to Cambodia because they have invited me and they will show me their farm and all the agriculture, which I'll cover in the YouTube and show each and every one of you. Yeah. Thank you guys. Yes. Thank you so much. Guys, we have prepared for landing in Laos, country number 3. So I'm really glad I could make it. It was my dream always to travel like this, and I'm doing it. So I feel really privileged, and it's all because yes, I worked hard for it, and I have done a lot of research, guys. Literally, I have done much hard work for this, and I know if you guys support me coming journey, so I'll be able to make it to the more destinations as well. So दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हो अब हम लाओस में लैंड करने वाले हैं. यहाँ पे बेसिकली वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन मैंने लिया है. आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं. एज एन इंडियन सिटीजन दैट आप ई वीज़ा ले सकते हो. ई वीज़ा आपको $50 का पड़ता है एंड वीज़ा ऑन अराइवल आपको वही $40 का पड़ता है. बट वीज़ा ऑन अराइवल्स में थोड़ा सा मतलब वही है कि ऐसा कुछ पेटी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब एक वो रहता है ना कि अगर नहीं मिला तो अभी मेरा ये भी है कि एक स्टिकर वीज़ा लेना था मुझे. एंड ऑल्सो यस लेट्स सी कि कैसे जाता है प्रोसेस में, आपको बताऊंगा वो भी. अगर आपको लगता है वियतनाम खूबसूरत था तो अगला एपिसोड बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं लाओस, एक ऐसा देश में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले सफ़र में. मैं हूँ मुसाफिर सत्यम.